म्यूट कर दे, लाइव म्यूट करना है। म्यूट क्या, म्यूट तो कर और unmute कर। Dr. Mahashweta, we are live. Can you please start? Yeah. Namaskar. I welcome all of you to Music Veranda, and I would like to start today's talk with the Ganesh Atharva Shisha. It goes like this. Om Om Pranamya Shirsa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasaଂ Smare Nityam Ayuh Kamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha Ekdantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingasham Gajavakram Chaturthakam Lambodaram Panchamam Cha Shashtam Vikatamevacham Saptamam Vighnarajendram Dhumravarnam Yathashtamam Navamam Bhalachandram Cha Dashamam Tu Vinayakam Ekdasha Ganapati Tu Dadasham Tu Gajananam Dadashaitani Namami Trisandhaya Pathe Naraha Nacha Vidya Nacha Vigna Bhayam Tasya Sarva Siddhi Karam Prabhu Vidyarthi Labhte Vidya Dhanarthi Labhte Dhanam Putrarthi Labhte Putra Moksharthi Labhte Gatim जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भीमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पये तत्सविद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री संकटनाशन श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम् ओम Thank you so much, Dr. Mahashweta. It was so beautiful, serene, and such a beautiful start. और आज Wednesday भी है. I will like to ask you ये थोड़ा सा इस स्त्रोत के बारे में कुछ बताएं आप. And I welcome everyone to our happy and awakening veranda. So just tell us a bit about it. This is a very powerful mantra. It is known as the Ganesh Atharva Shisha, and it has been written and composed by Narad. Okay, that's what they say according to our Indian mythology. So this is a mantra which invokes your heart chakra. It opens up your heart chakra, and when you are aligned with your heart, whether you are earning money, whether you want to acquire knowledge, whether you want to start a family or you want to start an empire, you have to be aligned with your heart. So this is one mantra which raises your vibration, and it opens up the heart chakra. It is a mantra. They say that it is so powerful if you are being able to chant for 21 days at one go. कर देता हूँ इनका और अगर इनके में आ जाता है तो मेरे को बता. At one go, it makes you a very powerful person from inside. So I advocate this mantra for the students and for the entrepreneurs and for teachers and basically for everyone. Thank you so much.
ब्यूटीफुल, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. दैट इज द होल थिंग. हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन डिकोड नहीं करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू एक्सप्लेन इट टू अस. तो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू आवर हैप्पी एंड अवेकनिंग वेरांडा. और जैसा कि समय, मैं कुछ बोलना चाहूंगी आज के समय के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी हमको किस तरह से हेल्प करता है, एंकर करता है. तो समय ने कैसा समय दिखाया, धुंध और निराशा और भय सब तरफ बिखराया, पर कहीं एक उम्मीद की किरण थी उस धुंध में. एक सच की लहर साहिल से टकराई, और वो लहर थी अपने आप को टटोलने की, समझने की, और उस परम सच को एहसास करने की. वो सच्चा सच, वो एक सच, वो परम सच. वी कॉल इट स्पिरिचुअलिटी. जी हाँ, टुडे वी विल ट्राई टू डीप डाइव इनटू द serene, beautiful and amazing spirituality. So, and today we are very thankful to our two guests, Dr. Aparna and Dr. Rekha Bhagat, who are part of Veranda today. So welcome Dr. Aparna and Dr. Rekha Bhagat. और डॉक्टर अपर्णा जो पहले से वरांडा को बहुत सारा उन्होंने हमें प्यार दिया है ऑलरेडी, और शी इंट्रोड्यूस अस टू डॉक्टर रेखा भगत, who is again a wonderful person. मेरे इनसे जब प्री टॉक हुई, I was so amazed to see her. इतनी सिंप्लिसिटी से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को डिकोड किया, जो कि बहुत, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोगों ने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक पार्ट होना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं. तो आज ये म्यूजिक वरांडा की अहम पहल है कि आज हम इसको समझे, और इसके लिए डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर रेखा हमारे साथ है. डॉक्टर अपर्णा के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी. शी इज अ साइंटिस्ट. शी वाज just a minute, let me just open a profile. I'm sorry. Yes, she is. I'm sorry, I'm not prepared on this. Anyway, she was a Dr. Aparna, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? इसको डीम्यूट करना पड़ेगा, इसकी आवाज नहीं आ रही मेरे को. Yes. हो गया. Can you hear me now? Yes, Hello? Yeah. Well, I've been professor at IRI Extension Division and Yes. did my doctorate in psychology, and I have had the privilege of writing books in spirituality as well as psychology and poetry also. I'm fond of Urdu poetry. So these books I have written, and I was columnist in HT. So many articles I've been writing. And what else can I say about myself? It looks very awkward, you know. Your books explore your hidden talents, what's your emotional IQ, and various other books, and especially आपने जो स्पिरिचुअलिटी के जो आप डिस्कशंस करती हैं, वो म्यूजिक वरांडा में बहुत बार आपने जगजीत सिंह साहब के बारे में भी बताया हम लोगों को. So that has actually helped us. So thank you so much, Dr. Aparna, for being part of this evening. And Dr. Rekha Bhagat, she is also a scientist with Pusa Institute. That's right, Dr. Rekha? Yeah. Yes. Yes, and most important, she is mother of Chetan Bhagat sir. So that's a very big thing for Music Veranda. And over to Dr. Aparna and Dr. Rekha. Please tell us about spirituality and take us deep dive into this journey. Dr. Aparna, आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में. थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. Unmute करो. Unmute. बोलना है ना. बोलो. Can you hear me? I can hear you. Yes. Okay. Okay. Well, सबसे पहले तो let me welcome all of you. I'm so happy to be in Music Veranda once again, and especially happy because of my friend Rekha, my very old friend Rekha ji. She's here with us all. She stays in Bombay, so I hardly have a chance to meet her. So welcome you all, and now let me start with my journey towards, first of all, about music. You said music, spirituality, and writing. So
I'll talk about music first. Music जो है ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूहानी एहसास है और ये एक थेरेपी है मेरे लिए और एक ग्रेट हीलर है. Right, it's something which is inborn in me, and that's why I'm here in the musical veranda, and I've been longing to unleash my hidden potential regarding music. So fascination for music was in me right from my childhood, and sitting on my windowsill I used to sing all the time, and then mostly Lata Mangeshkar songs and Noor Jahan songs. And one very interesting incident I can tell you about at gramophone incident. What happened? I was listening to songs for such a long time, and then I thought maybe Lata ji is now must be very thirsty. इतने गाने सुनाए इन्होंने और इनको पानी पिला देते हैं. तो मैंने क्या किया, एक जग उठा के ग्रामोफोन में पानी का डाल दिया और वो इतना हैवी हो गया and it fell down on my foot. एंड आज तक वो जो येलो नेल है ना मेरे लेफ्ट फुट का, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ माय एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय म्यूजिक आइडल, सो इस तरह की मेरे में भावना थी कि आई वाज क्रेजी फॉर म्यूजिक राइट फ्रॉम बिगिनिंग. एंड आई हैड अ सॉन्ग बुक एंड बहुत सारी सॉन्ग बुक्स थी, हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स वर रिटन देयर, लिरिक्स थे. वी यूज्ड टू लिसन टू बीना का गीत माला, आई रिमेम्बर. और संडेज को हमारा कैरियोके का रिकॉर्डिंग वगैरह होता था, उसमें सब मिलके गाने वाने गाते थे और रिकॉर्ड सुनते, अपनी आवाज सुनते थे. Then as I grew up, then I thought that learning classical music, सब लोग बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, even for singing light music. So I learned classical music in Sangeet Bharati for 3 years. I did up to Madhyama I could do, but because of my official responsibilities थोड़ी बढ़ गई, फिर वो professorship मिला, so I had to leave it. And in those days I was very fond of Talat Mahmood, and then later on ये जगजीत सिंह जी, उनका म्यूजिक हम सुनते थे. And संगीत भारती में I used to go after office hours, so it's during my this tenure 9 to 5 job for so many years. After office hours वहाँ जाके संगीत भारती में म्यूजिक सीखना was rather tough, but somehow I managed. And because where there is a will there is a way. The music was in my, it is still in my life all the time. And then that inspired me to also, जगजीत सिंह जी का म्यूजिक में उनके भजन जो थे गजलों के अलावा, वो भी मेरे को, they were very touching, heart touching. He used to sing straight from his heart. तो मुझको लगा कि म्यूजिक उनके गानों का एक एल्बम निकालूं in my own voice. तो ये म्यूजिक एल्बम था एक डिवोशनल सॉन्ग्स का, समर्पण. वो that my music album, उसमें सारे मैंने गाने उन्हीं के गाए, and then I dedicated that to him. Then I used to attend all his music concerts and also all his music albums. जब भी रिलीज होती थी I would write an article on it. तो उसकी वजह से मेरे को उनसे मिलने का भी मौका मिलता था, concerts attend करते थे तो. And I used to urge him to always do devotional albums, because ghazal albums तो बहुत कर चुके थे. और his last 2 albums were devotional only. One was Nivedan and the other was Adi Shakti Sankirtan. तो ये last 2 उन्होंने devotional albums किए थे. These are very memorable memories for me, and so music has been very, very close to me, to my heart always. As for the spirituality, spirituality is something which is it is something you cannot define it like that. कि इसकी क्या है, लोग सोचते हैं कि बड़ी हाई साउंडिंग चीज है, शायद हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ छोड़ो, फन छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बट इट्स नॉट लाइक दैट. बड़ी सिंपली उन्होंने डिस्क्राइब किया है, श्री श्री रविशंकर जी ने डिफाइन किया है, ही रीडिफाइंड इट, दैट स्पिरिचुअलिटी इज लाइक बनाना. एंड रिलीजन को आमतौर पे जो सोचते हैं लोग, वो बनाना स्किन है. लोग क्या करते हैं, वो बनाना स्किन ले लेते हैं पर बनाना को छोड़ देते हैं. It's very sad, like for example, हम जैसे गंगा में नहाने जाते हैं, हम गंगा को माता समझते हैं और ये हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रिलीजन हमारा. But when we are all the time polluting it afterwards, where lies the spirituality in it? You have taken hold of the banana skin, but you have thrown away, thrown away the banana. ऐसे ही एक संत कबीर जी ने एक बार क्वेश्चन एक मौलवी जी से पूछा था कि
आप मुझे ये बताइए कि आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं मस्जिद से, तो आप स्लॉटर हाउस में जाते हैं और सांप के बकरीद एंड ऑल दोस, you are involved so actively in slaughtering animals. Is this spirituality? So the essence of spirituality को हमें अपनी जिंदगी में लाना है, और that is real spirituality, rather than following the rituals and doing things which are on superfluous level only. So, and since my childhood, I used to see my mother praying, and उससे हमारे घर का माहौल ऐसा था, spiritual था always. My father used to go to चिन्मयानंदा जी के लेसन सुनने जाते थे, ये spiritual discourses. तो मैं देखती थी, ऑब्जर्व करते करते, और मेरे अंदर भी वही चीज थी. I was very much inclined towards spirituality. और फिर गॉडेस जो है माँ संतोषी, में उनका व्रत करती थी, एंड लॉर्ड शिवा का, right from my childhood. So twice a week I was fasting all for last 40 years. I have been fasting twice a week for Ma Santoshi and Lord Shiva, and that I got lot of contentment out of Ma Santoshi. Contentment के लिए है my Ishta goddess. So I really feel that my soul is contented. और शिवा जो है वो materialism से बहुत दूर है, और मुझ में भी मटेरियलिज्म के बारे में बिल्कुल भी उसकी तरफ लगाव नहीं है. सो इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि जब आप किसी डेटी की प्रेयर करते हैं डीपली में डूब के सच्चे मन से, तो उनकी क्वालिटीज जो भक्त है उसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली आ ही जाती है. एंड आई फेल्ट द सेम इन माय केस आल्सो. देन हमारे घर के आसपास दुर्गा पूजा हुआ करती थी, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड फॉर दैट. और आई यूज्ड टू गो देयर, एंड सारी पूजा एक्टिविटीज देखना और कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट लेना. फॉर 9 days इट वाज रियल हेवन फॉर अस. मी एंड माय फ्रेंड्स हम एक साथ जाते थे. और देन हमारे घर में भी नवरात्रि के सेलिब्रेशंस वगैरह हमेशा बहुत धूमधाम से हम करते हैं. 9 days फास्टिंग आई यूज्ड टू, इवन नाउ आई एम डूइंग. तो फास्टिंग करते हैं, और इस तरह से एक माहौल स्पिरिचुअलिटी को जिंदगी में लाने के लिए बहुत नेचुरली ही आ जाता है, और शुरू से हम करते ही आ रहे हैं. बचपन में अपने पेरेंट्स को भी देखते आ रहे हैं. फिर शिमला में एक जाखू टेम्पल है हनुमान जी का. इट हैज फैसिनेटेड मी वेरी मच. वहां पे मेरा चाइल्डहुड शिमला में बीता है. माय फादर का वहां पे ट्रांसफर हुआ था, तो फॉर 3-4 years वी वर देयर. Then I remember मैं छोटी थी, और I was carrying my younger brother in my lap, और वो इतनी ऊंची स्टीप चढ़ाई जाखू मंदिर, if you have been there, उसको गोद में लेके मैं वहां पर गई, और I wanted हनुमान जी to bless him, और पेरेंट्स भी साथ में थे. मैंने कहा नहीं, मुझको गोद में ही रखना है उसको. And it was such innocent love for God and my brother. तो वो सब चीजें मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ. फिर हमारी innumerable pilgrimages to वैष्णो माता, innumerable. I think 12-13 times I have been there with my full family. बच्चों के साथ, दोनों daughters हैं, दोनों daughters को लेके हम जाते थे, और summer vacations में. तो फिर I have a puja room, and where I sit and pray for at least 2 hours daily. Used to pray during my office days 2 hours, but now I pray for 4 hours, because अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो इतना वो. लेकिन जो अंदर से ऐसा लगता है, आई फील इनकम्प्लीट अगर मैं प्रेयर नहीं करूं. और आई द काइंड ऑफ, देयर आर नवदा भक्ति, 9 types of spiritual practices are there. संकीर्तन, मनन, चिंतन, इस तरह से बहुत से हैं, 9 तरह के हैं. तो मेरा चांटिंग में चांटिंग का कोर्स किया है एक मैंने. सो आई डू मंत्रा चांटिंग ऑल्सो. मेरा गुरु मंत्र जो है उसको मैं 16 rounds of that गुरु मंत्र वी हैव टू डू. So morning evening मिला के, so that religiously I do. And then I also do meditation, और उसमें कई तरह के meditations होती हैं. हम जो श्री श्री रविशंकर जी की बताई हुई meditation करते हैं. और इसके अलावा डिवोशनल चैनल्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं. अब तो आजकल के बच्चे, आप लोग सब बहुत लकी हैं, यंग फोक्स. हमारे टाइम में तो वी हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग सेंट्स. इतने गजब के चैनल्स हैं, दिस आराधना चैनल, उसमें सदगुरु जी का डिस्कोर्स सुनती हूँ मैं, और ये श्री श्री रविशंकर जी का. देन ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आई टेल यू इट इज सो मेस्मराइजिंग.
और मेरा तो वहां से उठने को मन ही नहीं करता. समटाइम्स आई एम टोल्ड अरे खाना तो खा लो, देर हो रही है, वो हो रहा है, लेकिन एंड देन यू नो सीरियल्स लाइक देवों के देव महादेव एंड राधा कृष्ण का सीरियल है, देन मेरे साईं, ये सीरियल जो है दे आर यू नो इतना मन में इतना उत्साह भर देते हैं, इतना आपको रिजुविनेट कर देते हैं, यू आर सो क्लोज क्लोज टच विद गॉड कि आप बिल्कुल आत्म विभोर हो जाते हैं और कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. एंड वो जो मेरे साईं का है वो तो इतना इंस्पायरिंग है, तो मन करता है अभी उड़ के शिरडी चली जाऊं मैं. इस तरह से स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में है. और फिर डिवोशनल वर्कशॉप से मैंने बहुत अटेंड किए हैं. हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के तो ये श्री श्री रविशंकर जी जो है उनका एडवांस कोर्स किया था वहां पे ऋषिकेश में जाके. इट वाज फैसिनेटिंग रियली. एंड देन बैंगलोर में उनका आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का. देयर आई हैड गॉन फॉर एंड स्टेड देयर फॉर 7 days फुल 1 week. मेरी डॉटर थी साथ में स्वाति, उसको इंटरव्यू करना था श्री श्री को, बिकॉज शी वाज वर्किंग इन फर्स्ट सिटी और एज एन एडिटर, वन ऑफ द एडिटर्स इन द एडिटोरियल बोर्ड. तो वहां जब इंटरव्यू करने गई ना तो श्री के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा. उनकी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सुदर्शन क्रिया का कोर्स, वो सब हमने वहां पे देखा किया. और दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी रियली इज अनफॉरगेटेबल. तो उस तरह की चीजें. फिर अवधूत शिवानंदा जो है उनका दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र का उनका शिविर था, वो मैंने अटेंड किया 1 बार. एक बार हम पहाड़ पे भी कहीं गए थे, कहाँ गए थे हम, कामाख्या टेम्पल गए थे. यस, तो वहां भी वही हो रहा था. और यहाँ दिल्ली में मैंने अटेंड किया था. तो उसमें वो बीज मंत्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती के की चांटिंग करनी होती है. तो ऑल ड्यूरिंग नवरात्रि तो ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है. तो इस तरह की नवदा भक्ति के बीच में आके ला के अपनी जिंदगी में, चाहे मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आई फील एनलाइवन्ड एंड आई फील सो क्लोज टू गॉड. और ऐसा लगता है कि इसके बिना तो मतलब दिस इज लाइफ, इसके बिना लाइफ जो है वो लाइफ नहीं है, कुछ एग्जिस्टेंस ही है वो. तो इन दिस वे स्पिरिचुअलिटी इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ. एंड सो फार एज राइटिंग इज कंसर्न्ड, यू नो राइटिंग के लिए कहते हैं ना कि हमारे पास इतनी 9 to 5 जॉब करने के बाद भी आप राइटिंग के लिए कैसे आपने टाइम निकाला. टाइम तो निकलता नहीं है, लेकिन यू नो व्हेन वेयरएवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे ऑलवेज. एंड इफ यू हैव लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, आपको थकावट भी नहीं होती उसको करने में, और समय कैसे बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा. चाहे आधी रात को बैठ के भी आपने कुछ लिखना शुरू किया, यू जिसमें खो जाता है इंसान. सो आई फाउंड माय द सेम थिंग इन माय राइटिंग आल्सो. इन माय बिजी शेड्यूल आई कुड फाइंड, बिकॉज आई हैव ए फ्लेयर फॉर राइटिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आई ये सारे आर्टिकल्स जो मेरे हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने लिखे हैं और जगजीत सिंह जी के म्यूजिक के ऊपर लिखे हैं, इन सब के लिए मैंने ऑफिस होते हुए भी somehow टाइम निकाला. एंड आफ्टर मैरिज ही मैंने ये आई रोट माय थीसिस आल्सो, पीएचडी इन साइकोलॉजी, डॉक्टरेट जो किया, वो राइटिंग वर्क सारा थीसिस का वो भी उसी में किया. एंड देन आई हैड टू टेक लीव, यू नो, टू स्टडी लीव फ्रॉम द ऑफिस फॉर डूइंग ऑल दैट. तो उस तरह से मैनेज हुआ. देन आर्ट्स फैकल्टी में जाते थे हम यूनिवर्सिटी में, और वहाँ जाके ये सारा राइटिंग वर्क वहाँ पे करना, और फिर कॉलम का काम भी करना. देन राइटिंग द बुक्स आल्सो, यू नो, दीज 3 साइकोलॉजी बुक्स आई रोट ऑन इमोशनल IQ. देन ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक पर्ल्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, ये बुक मैंने लिखी थी, बिकॉज मेरे को अंदर से इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है. तो लगता था कि एक रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं ऑफिस का, उसके अलावा मुझको सेल्फ एक्सप्रेशन चाहिए था. तो मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन ये स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री का तो बहुत ही शौक था, और उर्दू पोइट्री में मैंने खुशबू एक बुक लिखी है. So like that I have found time, but this was, I haven't done anything actually. It's a sheer grace of God. I won't say मैंने किया, I was made to do, I was just an instrument in getting it done. You know, when you are praying deeply to God and you make God your partner, then what happens, you know, things materialize. और वो ऐसी अंदर से नई नई प्रतिभाएं उभर के आती हैं, मिरेकुलस लगती हैं, और खुद को पता भी नहीं होता कि ये मैंने कैसे कर लिया. मतलब you really just don't know how you tide over difficulties, and उसमें भी आप पॉजिटिविटी सोचते सोचते अपना काम आपका अपने आप खुद ब खुद भगवान कर देते हैं.
क्योंकि उन दिनों मुझे याद है पुस्तक महल के जो पब्लिशर हैं वो मुझको बार बार फोन करके बोलते थे आपकी बुक तो ईक्यू वाली जो है इमोशनल क्वोशंट वाली इट्स डूइंग ग्रेट बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट मैडम, आप प्लीज हमारे लिए ऐसी कोई और बुक लिख दीजिए, कोई और बुक। लेकिन मैंने बोला आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट अभी करूंगी फ्यूचर में। पर अब ये सब जो था मुझे लगता था ये कैसे हो रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इट इज ऑल sheer grace of God, you know. And you know, it's very sad that people say कि हमारे पास तो मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, अब हम टाइम नहीं निकाल सकते। अच्छा, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके पास भोजन के लिए समय है और भजन के लिए कभी समय नहीं निकलता? ऐसा कैसे हो सकता है? यू ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर भोजन, एंड व्हेन इट कम्स टू भजन मीन्स वर्शिप ऑफ गॉड इन एनी वे, तो खैर अगर इतना ही मुश्किल है तो एक और बहुत आसान तरीका है, आप जो है ना काम करते रहो, नाम जपते रहो। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ कैरिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि आप आसन लगाएंगे और बैठेंगे और भगवान के मंदिर होगा, गंगा जल छिड़केंगे और मंत्र, वो नहीं है। आप यू मे बी डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप चपाती मेकिंग करते करते भी भगवान का नाम अपने मन में दोहरा सकते हैं, आपके मंत्राज आप बोल सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपने आप को आप वॉकिंग मेडिटेशन में भी ये कर सकते हैं। वॉक करने जा रहे हैं मॉर्निंग में, वो तो करते हैं, या आपका ऑफिस बहुत दूर है, यू आर ट्रैवलिंग, इन ट्रैवल यू कैन डू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी, भजन सुनते सुनते। आप कार में बैठे हैं, आप कार ट्रेन में जा रहे हैं, आप प्लेन में बैठे हैं, आप अपना हेडफोन लगा के आप भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन सुन सकते हैं। तो इस तरह से लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। एंड ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, बार बार तो नहीं आती है। ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम इसको वाइल अवे नहीं करें। इट्स ए वेरी प्रेशियस गिफ्ट, इनवैल्यूएबल, एंड यू शुड पुट इन गुड परस्यूट्स and help people and help them get into spirituality, because this is the ultimate aim of life. We have to go back to the Godhead, you know. हम जहाँ से आए हैं, और वो जो है इसी जन्म में हो सकता है, वो जानवर के जन्म में नहीं हो सकता, और किसी एनिमेट इन एनिमेट के जन्म, उनको विवेक ही नहीं दिया भगवान ने। वी हैव द इंटेलिजेंस टू नॉट वाइल अवे टाइम एंड नो कि हमारा हम हैं कौन और हमें करना क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू हैव सैल्वेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्डली थिंग्स, मोह माया, ये सब टेम्पररी है, और हमें जाना भगवान के पास है, एंड हमें अच्छे कर्म करके जाना है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमारे को जो उनके स्पिरिचुअलिटी के अंदर बीइंग काइंड, lovable, helping, hurting never, everybody knows all these things, help ever, hurt never, be kind, truthful, follow the path of righteousness, all these things, ये जो spirituality के aspects हैं, इनको करते हुए, साधना करते हुए, भगवान को याद करते हुए हमें अपना जीवन बिताना है, so that ultimately हम उसको सार्थक करें। यही वेरी वेल सेड, यही मेरे लिए है स्पिरिचुअलिटी। बहुत सुंदर। और जैसा कि डॉक्टर अपर्णा की लाइफ से ये पता चल रहा है कि यू नो शी हैज बीन अ साइंटिस्ट, शी हैज वर्कड at very prestigious positions, she has made creativity her part of life, she has made poetry her part of her life, and she has made spirituality. So that shows कि spirituality कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हम उसको अपनी लाइफ में कंबाइन नहीं कर सकते हैं। So it is a wonderful example, और आपने, that is why I insisted that आप ये तीनों aspects बताएं, और आपने बहुत सुंदर से बताया हमको। So thank you so much, Dr. Thank you so much. So I'll come back to you, and in the meantime I welcome Dr. Rekha Bhagat to the show. And Dr. Rekha, आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी जर्नी के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी को, क्रिएटिविटी को आपने अपनी लाइफ में कैसे कोलैबोरेट किया। Over to you, Dr. Rekha. Unmute yourself, please. Yeah. Unmute yourself, ma'am. Ma'am, unmute करें अपने को। You'll have to unmute yourself. Yes. Yeah. Hello. Can you hear me? Yes, we can. Yes. Okay. I'm Dr. Rekha Bhagat, and I retired as a professor and head from Indian Agricultural Research Institute, Pusa Institute, which is in Delhi. And I worked there as professor and head. And I was there for 41 years. And it was a great experience. I was greatly
I did my MSc Home Science from Lady Irwin College in Delhi. And then I did my PhD from Pusa Institute where I was working. And I guided so many, over 40 students in MSc and PhD. So it was a massive academic career. And like most of the young people, I was not aware of spirituality in a big way. Although I was very much interested in studies and research and teaching, like I never knew the value of spirituality. Actually, we have three dimensions: physical, mental, and spiritual. We take care of spiritual aspects very less. We are more focused on physical aspects and mental aspects. And spirituality is unknown to most of the young people. So, like them, I was also unaware of it. But only thing is, when I was very young, when I was a schoolgirl, my father used to put on All India Radio early in the morning at 6 o'clock so that we all wake up. And he will put on bhajans. And those bhajans, they used to touch me a lot. That was the first step of my connection with God. I used to love it. And I also used to think why I love bhajan so much, why I prefer them over all the musical songs. So, but I used to feel very peaceful, very happy, and I loved, always waited that when will this bhajan start, and then I'll get ready and go to school. But my mother was a very spiritual person. She was always reading spiritual books, going to satsang, and things like that. And but she never directly told us to become spiritual, but her involvement in spirituality also imbibed on me. So when I was in class 10th, I started reading Bhagavad Gita. I could not make out much of it, but I believe that by reading Bhagavad Gita, God will bless me. That was the beginning of spirituality. But I think most of the people suffer a lot in their youth, and I also suffered a lot. And actually, all this suffering was unwarranted. I can tell all the young people today who are listening to this program that by connecting to God, the first thing which happens is that you become very peaceful, very blissful, and you become very happy. And now, what is the real meaning of spirituality? I think the youth should understand that spirituality means connecting with your source, connecting with God. You may be having any religion, that is irrelevant, but you must have some connection. Be ready to give at least 10 minutes to God every day. Maybe before sleeping, you remember all the you should be grateful to God for whatever He has given you and not complain all the time. Most of us are complaining, this is not good, so and so is not good, my father is not good, my mother is not good, everybody is bad, all the situations are bad, and I am suffering. And sometimes it reaches such levels that people even commit suicide. But if somebody tells them that you are suffering because you are basically a spirit, a soul, and God is always there to help you, but you have to ask for that help. You cannot expect God to help you when you are not even asking for it. So it was my good luck, and it was the grace of God, because it is said that God chooses you, you cannot choose God. So God, I, I, I was thinking why I'm suffering, why nothing is working out perfectly for me. This is not good. This is not good. I do everything, and then again I'm not unhappy. Happiness was not known to me till I got connected to God. Because as soon as you get connected to God, the first thing happens is that you are full of gratitude to God for whatever He has given you, and not complain that this is not done, this is not done. You must realize that you are, whatever you are receiving in this life
is according to your own karma, which you have done in your last births and this birth also. The minute you start doing the right things, God will bless you immediately. It is instant service, I would say. The minute the first thing I can tell you to do is that they should control their tongue. Number one message for today, that they must control their tongue. They should always be sweet natured, talk to everybody very nicely, and never hurt anyone. That was the first message for the youth. This is real spirituality, practical spirituality. And number two is they should control their tongue, that they should not eat unnecessarily. Instead of eating fast foods all the time, they should eat nutritious food and at the proper time. They should follow a lifestyle which is correct. This is the message for youth. And that is, they can do yogasana, they can do whatever they want. And another thing I think it is the duty of parents also to imbibe some spiritual values by taking them to different religious places, like Madam Aparna said, going to Vaishno Devi, going to Hanuman Mandir, so many things they can do. And the results are so fast that I have had so many miracles in my life when I became spiritual. Today, I'm very old, but I was never so peaceful. I was never so happy. I was never so blissful. I always think if I would have imbibed all these values in my youth, I would not have wasted it and I would have enjoyed it. God has created everything for us only. We can enjoy everything, but in the correct manner. That is the first message I would like to give. Okay. Thank you That's so all much. for the Yeah. timing. Wonderful. And I really liked आपका जो decode है instant service, because I have also felt that instant blessing. You know, whenever I also connect to God, I get instant results. So that is a very big message and beautiful message. और भी जो आपने बातें बोली youths के लिए, which is so relevant. We really wish that, especially in the turmoil times, all these things should be helpful to all of us and to the youth. So in the meantime, जैसे कि ये म्यूजिक वेरांडा है, तो हम बातों के बीच में कुछ गाने, कुछ भजन भी रखेंगे. So we have two young girls, one Diya and one Manya. I would request Diya to please present a small bhajan to us. Okay, that would be wonderful. Yeah, Diya so Pani. I'm from Sonipat. So good evening, everyone. How are you, Diya? I'm fine. How about you? Very nice, wonderful, blissful. Yeah. So I'm in 10th class right now, and आज का event मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी तक का, and आगे भी पसंद आएगा. तो अब मैं एक भजन सुना रही हूँ and hope आप सबको पसंद आए. सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नालों मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, बाबा तेरा द्वारा है, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर
हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी ओ सैया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी एना चरना कमला नाल मैनू दूर हटावी ना बाबा दूर हटावी ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पीछा लाई ना बाबा पीछा लाई ना जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी साया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग थैंक यू बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल दिया। Very beautiful. It थैंक was यू very मैम beautiful bhajan. It said everything to So, surrender. yes, over to Manya. Manya, Yes, ma'am. Thank you. Good evening, everyone. I'm Manya Udupi from Bangalore. I'm a student of 12th and I'm loving this show. I'm going to sing a bhajan. Hope you all like it. मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी चंद्रबिंब समा वदन विराजे चंद्रबिंब समा वदन विराजे वामांग में वीणा साजे वामांग में वीणा साजे शीश मुकुट गले मालधारी शीश मुकुट गले मालधारी मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी मातृ सरस्वती मातृ सरस्वती मातृ सरस्वती जय जगदीश्वरी थैंक यू बहुत डिवाइन, बहुत सोलफुल एंड इट्स रियली नाइस। हम लोग को लग रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि यंग चिल्ड्रन दे आर नॉट इनकलकेटिंग स्पिरिचुअलिटी, बट वी आर आई एम सो होपफुल आफ्टर सीइंग मान्या एंड दे आर नेइंग things. The youths are ready to take and accept spirituality. So over to Dr. Aparna. Dr. Aparna, हम बच्चों में कैसे स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। और क्योंकि जो बच्चे आमतौर पे जब इम्प्रेशनेबल ईयर्स जो उनके होते हैं, फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, चाइल्डहुड टाइम, टीनेजर्स तक की लेवल के, उस समय जो वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को, उसका उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जो अपने घर का माहौल देखते हैं और वो पेरेंट्स को ना अपना रोल मॉडल समझते हैं। माई पापा इज द बेस्ट, माई मॉम इज द बेस्ट, तो जो वो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, तो दे ट्राई टू फॉलो देम। इसलिए उस वक्त हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम अपनी लाइफ में लाके दिखाएंगे उनको, मतलब दे विल ऑब्जर्व वेरी कीनली, उससे उन पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि घर में स्पिरिचुअलिटी का माहौल होना चाहिए। एक मंदिर होना चाहिए जहाँ रेगुलर सुबह शाम जोत जल रही है, मदर फादर या कोई भी मेंबर घर का जरूर पूजा कर रहा है,
उस घर में वैसे भी प्योरिटी आएगी, और जो बच्चे जो देखेंगे वो उनको लगेगा कि हमें भी ये सब करना है, जरूरी करेंगे, क्योंकि उनकी वो सेंस ऑफ ग्रास्पिंग उस टाइम बहुत ज्यादा होती है, और वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस समय में। तो ये एक बहुत जरूरी इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा अब जैसे घर में जितने भी सेलिब्रेशंस कीजिए आप बच्चों के लिए, जितने रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, ये जितने भी दिवाली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, और शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इसमें बच्चे झांकियां बनाएंगे, सब देखेंगे, क्रिएट करेंगे अपने मंदिर। जन्माष्टमी में कृष्ण जी का बनाया है, माता की, दुर्गा माता की चुन्नियां चढ़ाई हैं, या जाके जो भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बचपन में, वो उनकी जिंदगी भर फिर उनके साथ चलता है। वो हम भी ऐसे ही कंडीशन हुए थे। हम देखते थे हमारे घर में नवरात्रि, हमारी मम्मी बहुत धूमधाम से करते थे, व्रत कर रहे हैं, कन्या पूजन हो रहा है, वो सब। तो आज दिन तक हम वो सब करते हैं अपने घर में। और दिवाली में हम जाएंगे, नेबर्स को मिठाई दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान राम की। दशहरे में जाते हैं और वो रावण के 10 सिर देखते हैं वो जलते हुए, वो सब कितना फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन एक बात यह है कि हमें उसके साथ उनको बताना भी है। अब दशहरा तो दिखाने जा रहे हो बच्चों को, बट व्हाट डज इट मीन? रावण के 10 सिर जो उसने जल रहे हैं, उसका 10 हरा, वो जो 10 जो विकार हैं उनको हरना है हमको, हमारे हमारे अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ग्रीड, एवरीबडी नोज ऑल दीज थिंग्स, बट चिल्ड्रन डोंट नो। हमें लगता है ये तो अंडरस्टूड है। हमें बच्चों को ये सब चीजें बतानी है कि आप जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट करना है। सिर्फ सुपरफ्लुअस लेवल पे नहीं कि आपने फन, नॉट जस्ट फॉर द फन सेक ऑफ फन आपने ये सब चीजें की हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट? तो इस उनके अपने ढंग से उनको हम बताएंगे, उनके उसके लेवल पे जाके बताएंगे। अगर हम बहुत तरह से प्रीचिंग करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। एंथुजियाज्म क्रिएट करके और फन के तरीके से हम उनको एक्सपोजर करा के, जैसे छोटे बच्चों को हम चिल्ड्रंस बुक्स हैं आजकल कितनी सुंदर आ रही हैं, कलरिंग बुक्स हैं, उसमें रामायण, महाभारत एंड लॉर्ड शिवा, कृष्णा के पास टाइम्स हैं, इस्कॉन टेम्पल में बहुत सुंदर बुक्स मिलती हैं। बच्चे कलरिंग भी करेंगे और साथ साथ मैथोलॉजी के बारे में उनको पता चलेगा, ये कृष्ण जी थे, ये पूतना थी, ये राक्षस था, वित्रासुर था, ऐसे उन्होंने मारा, ऑल दोस थिंग्स, यू नो। रामायण में राम कौन थे, सीता। अभी कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो महाभारत का कैरेक्टर है कि रामायण का कैरेक्टर है। कि दे आर ऑल काइंड्स ऑफ क्विजेस में, यू नो, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि हमारी इंडिया में मतलब वो देख तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन उनको अंदर के अंदर से इन डेप्थ नहीं जाते हैं उसके। तो ऐसे बच्चों में हम ये इनकलकेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और चिल्ड्रन बुक्स है, स्टोरीज है मैथोलॉजी के ऊपर, वो उनको पढ़ा सकते हैं। कार्टून्स के जरिए भी होता है, हनुमान जी का कार्टून है, रामायण का है, और कृष्ण भगवान का है। इस तरह से बचपन से ही उनके अंदर हम जब ये चीजें डालेंगे खेल खेल में, तो राइट। हाँ, तो उस तरह से हम उसको टेंडर एज में ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी हैव टू इंस्टिल द ह्यूमन वैल्यूज एंड टू एजुकेट देम कि आप स्कूल में आप जा रहे हैं, टीनेजर बन गए, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है व्हेन दे कैन लर्न ऑल काइंड्स ऑफ, यू नो, वाइसेस। कंपनी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड अलर्ट। तो उनको ह्यूमन वैल्यूज हमें बतानी है कि व्हाट इज काइंडनेस, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स, नेवर हर्ट एनीवन। ऑनेस्टी आप में ऐसे प्रीचिंग वे में नहीं, हमको स्टोरीज के जरिए बता सकते हैं। ऑनेस्टी होना चाहिए। एक कहानी बता सकते हैं कि एक लड़का था, वो देखो वो पेंसिल चुरा के लाया, उसके मम्मी ने बोला, कुछ नहीं कहा। अगले दिन गया, वो एक और बड़ी चीज पर्स उठा के ले आया किसी का, मदर डिडंट से एनीथिंग, उसको भी रख लिया। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा चोर बन गया वो, एंड ही वाज, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको बहुत उम्र कैद की सजा होने लगी थी। तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। ही सेड, मेरी मम्मी को बुलाओ। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मदर को बुलाया गया, तो उसने क्या किया, अपनी मदर को चांटा मारा, इमेजिन। तो ही वाज सो हर्ट, यू नो, अंदर से, कि मम्मी अगर आपने पहले दिन जब मैं पेंसिल चुरा के लाया था मुझको बताया होता कि ये बेटा ये ऑनेस्टी नहीं है, दिस इज डिसऑनेस्टी, थ्रो इट अवे और यू पुट इट बैक फ्रॉम वेयर यू गॉट। और उसके बाद फिर आप मुझको, उस टाइम आपने मुझको चांटा मारा होता
तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। आपने मुझको नहीं बताया, यू डिड नॉट गिव मी द ह्यूमन वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज, और आज देखो मैं किस माहौल में हूँ। तो लाइक दिस यू नो, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, यू नो, ऐसी स्टोरीज हमको बताएं तो उनके मन में भी ये भावना दृढ़ आ जाएगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट एंड डोंट हर्ट एनीवन। आप साईं बाबा की टीचिंग बताइए, हर्ट नेवर, हेल्प एवर। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे उन्होंने सारी लाइफ डेडिकेट की थी सर्विस में। और अच्छी अच्छी स्टोरीज बहुत सी इस तरह की है। ये दीज वैल्यूज यू नो हैव टू बी इनकलकेटेड। झूठ नहीं बोलना है, महात्मा गांधी बोलते थे, अहिंसावादी थे, हमें नॉन वायलेंस अपनी लाइफ में लानी है, बिकॉज वी हैव नो राइट टू किल एनीवन इफ वी कैन नॉट गिव बर्थ टू पर्सन। किसी मरे हुए इंसान को हम जिंदा नहीं कर सकते ना, तो हमें किसी को मारने का भी हक नहीं है। उनको भी जीना है, उनका भी लाइफ टाइम है, स्पैन है, आपको आप सडनली उसको कट नहीं कर सकते हो। किसी जानवर को नहीं। बच्चों को बड़ा थ्रिल मिलता है, पत्थर मार दिया, कबूतर को नीचे गिरा दिया, तितली को पकड़ लिया, अपने डिब्बे में बंद कर लिया, यू नो, चिल्ड्रन के छोटी छोटी फन ये चीजें हैं। बट दिस इज वायलेंस, वी मस्ट नॉट एनकरेज दीज थिंग्स। ट्रूथ बोलना, सच की राह पे चलना, इस तरह राइट की बातें डॉक्टर, बताएंगे। आई वुड, या इसी से मेरे को थोड़ा सा हाँ डॉक्टर से मैं एक क्वेश्चन हाँ पूछना चाहती बिल्कुल। हाँ हाँ हूँ। तो spirituality, surrendering, acceptance and gratitude, a part of हाँ। spirituality is this. How can one start this journey, and how, and can you recall any instances जब spirituality ने आपको actually help किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर रेखा से। अच्छा, ओके ओके, हाँ। मान्या। क्या डॉक्टर रेखा, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये जर्नी कैसे कौन स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी वो लोग अभी तक नहीं चांट नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल इसको सिंपल रखना चाहूंगी बच्चों के हाँ लिए, हाँ क्योंकि यूथ के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ठीक नहीं है। एक बात होती है स्पिरिचुअलिटी में जिसको बोलते हैं साधना। साधना का मतलब है कि आप हर रोज एक 10 मिनट, हाफ एन आवर या 1 आवर एलोकेट कर दो, जो सिर्फ आप वो साधना करेंगे। वो साधना आपकी मेडिटेशन हो सकती है, वो साधना आपका भजन सिंगिंग हो सकता है, या चैंटिंग हो सकती है, या जैसे मैंने फॉलो किया, मैंने रीडिंग किया। I have read spiritual books. I started with simplest spiritual books. Then I read all the spiritual books. I read Ramayana. I read Sai Baba books. I also read Jesus Christ books. Every religion I read. I wanted to know what is religion, why it is there, how it can help us. So I think I will advise youth to read books on spirituality, maybe 10 minutes before sleeping. If they don't want to read, they can go to YouTube. It is full of spiritual discourses. So this is the beginning, but it is your sadhana. You cannot break it. You have to spend 10 minutes. If you don't have much time, just spend 10 minutes and get connected to God, and that I have to thank God every day for whatever He has given me. And I don't complain. That is our nature. Youth also does the same thing. So gradually they will get linked to God. Actually, God is very much present around us, but only thing is we are unable to feel it. So how can you feel Him? You can only feel through sadhana. Like I started going to Hanuman Mandir every Tuesday, and every Tuesday I just started going because I thought I must do something for God, and whatever problems I had, I will give it to Hanumanji, surrender to him, and I'll just spend 10 minutes in the temple and then come back. I never expected anything in return from God. But after 3-4 weeks only, I started noticing that whatever I wanted, whatever kind of problems I had, they used to get solved on Tuesday. It was the first miracle I experienced. After that, I experienced so many. So this is the correct thing to say, that if I am taking 10 steps towards God, He will take 100 steps towards me.
because he's our father. He's always wanting us, but we are ignoring him. But God also ignores us, and then we suffer. Okay, that sadhana can be increased gradually. But I personally, I have been reading for the last 20 years, every day for 1 hour in the morning. And it has totally changed, transformed my heart. My heart has expanded. Now I know, I think I have to live selflessly. I am no more selfish. I'm not always thinking of my children because I have done already enough for them. I want to help others who are around me. They may be my helper, maybe my dhobi, maybe my neighbor. So I think I will advise youth to start with, they can do one good deed every day. That is the beginning of spirituality for them. Like they'd say, I will not sleep till I do one good deed. Now, what is a good deed? Maybe you go and talk to your grandmother for half an hour on phone, or if she's present there, you can talk to her. It will make her so happy. Or you can talk to your neighbor who is in need. So this is the beginning. Then I think God shows you the way, because you won't believe, in the last 20 years, I never decide which book I am going to read next. It comes to me automatically. Somebody sends me, or it just appears. I don't know. When I'm ready for a book, the book will come by itself. It's unbelievable, but it is true. What do you say, Aparna? Yeah, sure. In fact, we are, all the time giving books to each other instead of birthday parties, instead of clothes and cosmetics and all that, because we are so much in love with spirituality and philosophical books. And ये हमारी बहुत सालों की practice है. Actually, we are very much blessed to be born in India. India is a country of saints and masters, and they have so much wisdom to give us. Without wisdom, you are nothing. Without wisdom, your money has no meaning. Without wisdom, you cannot survive, and you cannot have peace, you cannot have happiness, you cannot have bliss. And from where this wisdom will come? From the words of masters, which are very much available in the form of books or YouTube or whatever. So, but you have to realize that without God, you cannot be happy, you cannot be blissful, and you cannot go ahead in life. Whatever you get, it is only the grace of God. Neela ji, unmute. Yeah, thank you so much. और मुझे लग रहा है कि कुछ ये डिवाइन फोर्स है जो आज हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और हम लोग इतनी सुंदर बातचीत कर पा रहे हैं. So this is all blessings of Almighty. And we have Uttam Kedia ji. He's a business person and वो भी आज सुबह यही बता रहे थे कि उनकी मदर भजन गाती थी और उससे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली. तो उत्तम जी कुछ बताएं उस बारे में and please sing that bhajan for us. Yeah. Hello everyone. I am so blessed to be part of this beautiful program today. And बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है डॉक्टर अपर्णा से and डॉक्टर रेखा भगत जी से. I am very thankful to both of you to teach us so many good things about life. और ये मेरे साथ जैसे बचपन से हम भाई बहन वगैरह जब भी थे हमारे होम टाउन में, तो मम्मी शाम को जब लाइट चली जाती थी और वो लालटेन लेके बैठते थे तो मम्मी अपना डायरी निकालती थी भजन का. और ये एक भजन था जो कि इस भजन मैं आप लोगों को सुनाता हूँ. इस भजन के साथ हम बड़े हुए हैं. तो सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे, माटी की काया माटी में हो, माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। थैंक यू। Thank you so much. Very And nice, this was very nice bhajan, very meaningful, Very nice. very serious. very inspiring, very Beautiful. inspiring. Was Thank very you. so. Yeah, Dr. Rekha, I would like to ask you कि ये आपने जब पेरेंटिंग कर रही थी तो आप बच्चों को ये कैसे इनकलकेट की, अपने बच्चों को कैसे इनकलकेट की कि वो जैसे कि हम लोग प्री मीट में भी बात कर रहे थे, आपने भी बताया चेतन जी बहुत स्पिरिचुअल हैं और डॉक्टर अपर्णा बताती रहती हैं, और भी नो जया जी शी सो स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव. So I would like to understand कि हम कैसे as parents what should we be doing, you know, to inculcate this. Over to you, Dr. Rekha. सबसे पहले तो हमको बच्चों को पहले तो खुद स्पिरिचुअल बनना होगा, क्योंकि जो बच्चे तो बंदर होते हैं, वो तो जो आप करोगे वही करेंगे, और उनके लिए वो शुरू में खेल ही होता है. जैसे अपर्णा ने कहा कि वो ऐसे कुछ कलरिंग करेंगे, कुछ हनुमान जी बनाएंगे, कोई रावण बनाएगा अपनी कॉपी में, कुछ ना कुछ वो करते हैं. एंड जब वो ऐसे काम कर रहे होते हैं तो हम उनको साइड बाय साइड थोड़ा सिखाते रहते हैं कि भाई इसका ये बैकग्राउंड है, इसका ये बैकग्राउंड है. जैसे दिवाली आई है, मैं खुद सोच रही थी कि दिवाली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इतना ज्यादा क्यों मनाते हैं इसको, इतना ज्यादा फेस्टिवल कोई भी और नहीं मनाया जाता. तो अब जाके मुझे समझ आई है कि इसका बनाने का असली अर्थ ये है कि राम जी आए थे अयोध्या में, तो राम जी तो लाइट है ना, ही इज लाइट, एंड ही केम टू अयोध्या. अयोध्या वाज डार्कनेस, एंड राम जी अयोध्या में आए तो दिवाली बनी. और आज की दिवाली का भी यही मतलब है कि हमारे अंदर के जितने अंधकार हैं वो दूर हो जाएं, और हमें इतना ज्ञान आ जाए, इतनी विजडम आ जाए कि हम सचमुच राम के आने से ही विजडम आएगी. जैसे ही राम तुम्हारे जिंदगी में एंटर करेंगे तो तुम्हारे ज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा. और राम के बिना आपकी जिंदगी में हमेशा अंधकार रहेगा. आप कुछ भी कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा. लोग पैसे के पीछे पागलपन की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है. और आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हो, अपना फ्यूचर भी खराब कर लेते हो, तड़पते तड़पते चले जाते हो. लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ गई कि बिना भगवान की ग्रेस के मेरे को कुछ मिल ही नहीं सकता, इसलिए आई हैव टू सरेंडर टू गॉड, और जो वो रास्ता दिखा रहे हैं वही मुझे फॉलो करना है. अगर आप अच्छे कर्म करने लगते हो तो ये भी कहा जाता है कि जो आपके पुराने पाप हैं जो वो सारे जल जाते हैं. वो हमारे आज के पुण्य में सारे पुराने पाप भी जल जाएंगे. भगवान जैसे हमारा बच्चा जब सही रास्ता पकड़ता है तो हम उसके पुराने कारनामे भूल जाते हैं. ऐसे ही भगवान भी जब हम सही रास्ता पकड़ते हैं, सही वैल्यूज पकड़ लेते हैं और उनसे लिंक बना लेते हैं, उनको अपनी जिंदगी का आधार बना लेते हैं, तो उनको भी सही रास्ता देखते ही वो हमारे पुराने कर्मों को माफ कर देते हैं और आगे हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं. वो ऐसी ऐसी चीजें आपको देते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती. इतना सुख, इतना शांति, इतना पैसा, जो आप मुंह से मांगोगे वही हो जाएगा. ऐसा भी होने लगता है. कई बार तो डर लगता है
कि मैं कुछ ऐसा ना मांग लूं जो बहुत छोटा हो, क्योंकि भगवान तो तुम्हें हीरे दे सकते हैं और हम उनसे कांच ही मांगते रहेंगे। तो इसलिए मैं यूथ को यही कहूंगी कि भगवान को अपनी जिंदगी का आधार बनाओ, सब कुछ करते रहो, कुछ भी आपको करने को मना नहीं है, लेकिन आपको सही वैल्यू सिस्टम से करना है, कोई भी गलत काम करना ही नहीं है। और बच्चों को बार बार ये समझाओ कि गलत तरीके से कुछ नहीं लाना जिंदगी में, सब सही तरीके से आना चाहिए, चाहे कम आए कोई बात नहीं। तो यही मैं कहूंगी कि इसमें माँ बाप का बहुत ज्यादा रोल है और उनको करना चाहिए, लेकिन यूथ अपने आप को खुद भी मदद कर सकते हैं इसमें। मैंने भी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी की है, मेरे पास कोई लाइव गुरु नहीं था, और मेरे मम्मी वैसे बहुत स्पिरिचुअल थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे हमें बिठा के समझाया नहीं, तो फिर भी सीखा उनसे काफी कुछ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपकी जर्नी है, जैसे आप फिजिकल जर्नी के लिए आपके पेरेंट्स नहीं भी कहते, तभी भी आप जिम तो चले ही जाते हो, मेंटल जर्नी के लिए आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हो। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मन ही शांत नहीं है, अगर आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप ब्लिसफुल ही नहीं हो, आप फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ही नहीं हो, तो मेरे को तो लगता है आपका जीवन व्यर्थ ही है, फिर तो आप तड़प तड़प के ही मर जाओगे। क्योंकि आपके अंदर कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जो तुम्हारे मन के अंदर द्वंद चलता है ना, उसके आगे इस दुनिया के सारे वर्ल्ड वार फेल हैं। मतलब आपका दिमाग आपको इतना परेशान कर सकता है कि आप अपने आप को मार भी सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा पे काम करो, आत्मा शांत है तो आपको सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बस ये बात समझने की बात है। वेरी गुड, थैंक यू। So many pearls of wisdom. आज तो लगता है जिंदगी मेरी भी बहुत कुछ बदलने वाली है। तो भगवान ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी था ये सब कुछ, और इतने साल हम लोग इतना उधर उधर भटक रहे थे। सो इट्स सो इजी टू गेट। आप लोगों के बात जस्ट आपको टर्न लेना है, यू टर्न लेना है। वाह, ग्रेट। सो जया जी इज विद अस। हेलो जया जी। Hi, how are you doing, Anila? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इतना डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर रेखा, हम लोग सोच रहे थे स्पिरिचुअलिटी ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा गंभीर होगा, लेकिन इन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना अच्छा और मजा आ रहा है। वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस सेशन। सो आई वुड लाइक यू टू ऑथेंटिकेट कि डॉक्टर अपर्णा जो फॉलो कर रही थी क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी एज अ पेरेंट, यू नो, so like was it, you know, she was telling you or you just imbibed it, like how did it all happen? वो कैसे inculcate हुआ आपकी लाइफ में, ये मैं जानना चाह रही हूँ, कैसे imbibe किया आपने? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर के। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल शो है और मेरे लिए खास स्पेशल है क्योंकि इसमें रेखा आंटी भी है और मम्मी भी हैं, और दोनों ही मेरी बहुत ही क्लोज है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी बचपन की यादों का पार्ट है हमेशा हमेशा। और अंदर से दिल खुश हो गया दोनों की बातें सुन के, और इतनी डेप्थ में उन्होंने कितना कुछ महसूस किया है अपने जीवन में, और वो सारा ऐसे उभर उभर के आता है जब हम सुनते हैं, तो सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज ऐसे किसी के जीवन के निचोड़ को नहीं तो आप सिर्फ किताब में पढ़ पाते हो, बट वो हमें म्यूजिक वरांडा ब्यूटीफुल प्रोग्राम में हमें वो उनके जीवन का निचोड़ जो है ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और मैं तो ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही, मतलब डॉक्टर अपर्णा है और डॉक्टर रेखा है, दोनों ही बहुत एक्सेप्शनल लेडीज हैं, क्योंकि दोनों ने एज अ साइंटिस्ट काम किया है और दोनों ही ने दो दो बच्चों को बड़ा किया है। लेकिन मैंने खुद देखा कि ये दोनों ही पूसा इंस्टीट्यूट में हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, साथ के साथ दोनों ने बाल विकास के लिए जो गरीब बच्चे थे पूसा में, उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल क्लासेस थी जो ये दोनों करती थी ऑर्गेनाइज, और छोटे छोटे बच्चों को साईं बाबा की ब्यूटीफुल टीचिंग्स और भजन और गाने ये सब सिखाती थी। उनके लिए प्राइजेस बना के रखते थे, वो प्राइजेस देते थे जो बच्चे अच्छे से मतलब ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सेइंग्स याद करते हैं और गा के सुनाते हैं। तो उन्होंने इतना मोटिवेट करती थी ये कि मतलब ऑफिस भी जाएंगी, उसके बाद फिर ये बाल विकास केंद्र की क्लासेस भी करेंगी उनके लिए।
तो मतलब हम तो घर में हैं, मतलब हम तो हैं ही हैं, उसके बाद और बच्चों के लिए भी कर रही होती थी, एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी मोटिवेटेड टू डू दैट ऑल द टाइम। और अभी भी मैं यही देखती हूँ कि मम्मी और रेखा हमेशा ही सारा टाइम स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स एक्सचेंज होती हैं। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि यू नो दे हैव समथिंग सो ब्यूटीफुल इन कॉमन इन बिटवीन ऑफ देम। और मैं आज की ज्यादा बातें कर रही हूँ बिकॉज मैं तो अभी आज को भी नोटिस कर रही हूँ उतना ही। और बड़े होने में तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि एज अ चाइल्ड तो हम देखते हैं ना, एक माहौल को देखते हैं और देख देख के हमें मजे आते हैं। तो देख देख के हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। मैंने तो हमेशा ही देखा है कि घर में जितने गाने ही गाने चल रहे हैं और गानों के अंदर बहुत सारे भजन भी होते थे, भजन के साथ साथ नरेंद्र चंचल भी होते थे। कभी कभी मैं एक्चुअल जागरण में भी लेके जा रही थी मम्मी मैंने बैठ के सारी रात जागरण भी देखा है। आई मीन नाउ आई थिंक ऑफ इट, मतलब क्या मैं अपने बच्चों को ले जा सकती हूँ ऑल नाइट जागरण, बट मम्मी यूज्ड टू टेक अस अलोंग। जा रहे हैं तो ठीक है, हम भी जा रहे हैं, यू नो, मतलब इट वाज अ वेरी प्लेफुल एक्सपीरियंस कि अच्छा 12 बज गए, 1 बज गए, अभी हम बाहर बैठे हैं, नरेंद्र चंचल जोर से गा रहे हैं, भजन सुना रहे हैं और हम भी बैठे हुए हैं, you know, and it was a fun thing. अरे वाह, घर भी नहीं जाना, जल्दी नहीं सोना, you know, you're sitting out in the open and you're enjoying that whole माहौल. That was for us, it was fun at that time. और सारा टाइम नवरात्रों में ऑफ कोर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नवरात्रे, क्योंकि कंजक पूजा होएगी और प्रसाद बनेगा, यू नो, फॉर अस इट वाज फेस्टिविटी, मतलब मजेदार। तो मेरी शादी होने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियरली पता थी, और कुछ हो ना हो मैं कंजक जरूर करूंगी, नवरात्रे करूंगी और प्रसाद जरूर बनेगा, मैं ही बनाऊंगी। सो यू नो इट वाज लाइक कि मुझे भी कंटिन्यू करना है, जो मम्मा को मैंने करते हुए देखा है मुझे भी कंटिन्यू करना है, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी करूंगी, यू नो, वही चीजें। तो इट डजंट मैटर कि मेरी शादी मलयाली से हो, पंजाबी से हो, बंगाली से हो, किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जो मैंने देखा है मम्मी को करते हुए मुझे तो करना है, करना ही करना है, यू नो। सो I guess that's the feeling, you know, that you want to do it because you love it, you know। तो आज मेरे लिए तो पूजा का मतलब ही यही है कि यू नो उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, पूजा एंड सेलिब्रेशन आर इंटरट्वाइंड फॉर मी। तो मेरे लिए तो अच्छा मकर संक्रांति होगी तभी भी मैं यही करूंगी, बहुत सारे फूल लेके आऊंगी मंदिर के बाहर से, अपने घर में लगाऊंगी, मैं यू नो मंदिर जाऊंगी, अगर हो सके तो उसे टेम्पल डे बना दूंगी, उस दिन कोई और कुछ नहीं करेंगे हम, उस दिन टेम्पल जाऊंगी, अच्छी सी साड़ी पहनूंगी, साड़ी इज इंटरलिंक्ड विद ऑल सेलिब्रेशन, यू नो, तो वो करूंगी। तो इट्स और अभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारी पिलग्रिमेज ट्रिप्स करते हैं, तो माय हैप्पीएस्ट फोटोज आर माय पिलग्रिम सेल्फ, यू नो। साउथ इंडिया में जाओ, कर्नाटका में जाओ और बालों में फिर वो वेणी लगा लो और फिर मंदिर में घूमो, मतलब इट्स सच अ हैप्पी फीलिंग। वो दिल्ली में बैठ के अपना नॉर्मल काम करते हुए वो फीलिंग कभी आती ही नहीं है, यू नो। सो ये बचपन में इतनी बार वैष्णो देवी गए, इनफैक्ट मैं रेखा आंटी के साथ, चेतन के साथ, मम्मी और स्वाति के साथ, सबके साथ वैष्णो देवी जा चुकी हूँ, यू नो, ऑन अ ट्रिप। तो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते थे। तो कहीं पे वही सेलिब्रेटिंग योर स्पिरिचुअलिटी, आई मीन इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर मी, इट इज नॉट लाइक अ something I have to do, you know, it is a celebration. And maybe my grandfather was also like that, mummy's father, Dr. B.M. Pal, and he always instilled in us that, you know, celebration hai, har festival ek celebration hai, and वो celebration spirituality का part होता चला गया। और मैं यही कहूंगी कि आज we are very lucky, मतलब मैं और स्वाति especially we got क्लासिकल डांस इन आवर लाइव्स, बिकॉज वो भी ऐसे ही हुआ कि हमें ऐसा वोकेशन ही मिल गया जिसके अंदर हम डायरेक्ट पूजा ही कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ ऐसा, किसी ने कोई प्लान नहीं किया था इसको, बट इट जस्ट सो हैपेंड कि अब जो हमारी गुरु हैं डांस में वो ही हमारे को हनुमान चालीसा, दशावतार, नव दुर्गा, जगन्नाथ अष्टकम वो ही सिखाती हैं और वो ही हमने अपने अंदर सीखा और अब नए रूप में बच्चों को भी दे रहे हैं, यू नो, द स्टूडेंट्स आल्सो। तो हमने बिना एनी प्लानिंग के, मतलब it flowed into our lives. So I pray to God that everybody finds that celebration that God is, and ठीक बोला बिल्कुल रेखा आंटी ने कि we are lucky to be in India because
इंडिया में ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हर चीज में दौड़ रही है. It's in yoga, it's in meditation, it's in chanting, it's in travel, it's everywhere. It's a spiritual landscape. सब जगह. हाँ, you are so right. So right. Absolutely. Wonderful. बहुत सुंदर. I think वो आपने जो बोला, it just flew, it just happened. कुछ उन्होंने बताया नहीं. So that was my whole idea कि इसको बस हम करें तो बच्चे अपने आप देखते हुए सीखेंगे. So, and we have to make it sound like celebration, because children and youths, and we'll also like celebrations more, So that is one thing that I'm taking from you in this veranda talk. क्योंकि ये veranda की talk है, तो बहुत ही casual है और बहुत ही absorbing होनी चाहिए. So we have a young boy, Vinay Sharma. विनय समल खां से हैं और ये पुजारी जी के ही बेटे हैं और ये भी एक भजन गाना चाह रहे थे. अभी इन्होंने टेक्स्ट किया, मैम मेरे को भी ये टॉक में कुछ पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने बोला आओ आप भजन गाओ. सो व्हाट यू विनय, क्या गा रहे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. और आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का भजन सुनाना चाहता हूँ. आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा. रो रहा है गोविंद की गली में, के रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गली में. तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है. वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, हर सुबह खुशनुमा है की गली में, हर सुबह खुशनुमा है की गली में. तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का. मंजिल पे कर निगाहें दिन रात क्यों डगर जा, हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में, हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में. बहुत सुंदर विनय, बहुत आशीर्वाद आपको. और डॉक्टर रेखा, डॉक्टर अपर्णा, आई वुड रिक्वेस्ट आप कुछ विनय को आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें अपनी. बहुत May God bless you. अर्पण है. May God bless you. You are a budding artist. खूब तरक्की करो और बहुत अच्छा गा रहे हैं. शुरुआत बहुत अच्छी है आपकी. आपको भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे. You will prosper. थैंक यू सो मच. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर रेखा से, आप लोग भी एक एक भजन गाएं, बिकॉज यू आर म्यूजिकली इंक्लाइंड पीपल, So can I request Dr. Aparna and then Dr. Rekha to sing a bhajan? And तो thank you so much for giving me this opportunity, क्योंकि as I told you कि music तो मेरे लिए बहुत बड़ी
चीज है, और जब कोई मौका मिलता है गाने का तो पुराने दिन भी याद आ जाते हैं। तो अभी एक मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है सांवरा का, जगजीत सिंह जी की एल्बम है सांवरा, उसका है ये। कृष्ण भगवान का ही है ये भी। तो आई विल ट्राई टू सिंग। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, जोग ध्यान में चित नहीं लागे। मन की पीर ही पल पल जागे, नैन जगे अविराम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई। लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, दास सखा हरि दर्शन दीजो। कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। हाँ, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर। सो डॉक्टर रेखा, आपसे भी एक भजन सुनना चाहेंगे? Actually, after Aparna, I can't even sing. She's such a great singer. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सोचते Actually, हैं? मेरे को भजन याद भी नहीं है। मैं I will just sing 2 lines which of a bhajan which my mother used to sing. राम जपन क्यों छोड़ दिया रे, राम जपन क्यों छोड़ दिया रे, राम जपन क्यों छोड़ दिया रे। झूठ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया रे, राम जपन क्यों छोड़ दिया रे। थैंक यू। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और बहुत फेसबुक पे भी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और गौरव जी का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर रेखा आपसे? नमस्कार डॉक्टर रेखा जी, माई सेल्फ गौरव जैन। और मेरा छोटा सा सवाल ये है कि
कि जैसे हमारा जो आज का यूथ है उसके अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत कम हो गई है। मतलब जैसे आपने ये देखा होगा, उबेर है, स्विगी है, जोमेटो है, तो चाहे वो खाने की चीज है या हमें कहीं जाना है या कोई भी चीज है ना, हमें जैसे कोई चीज हम सोचते हैं हमें तुरंत चाहिए, एंग्जाइटी होने लग जाती है जब तक वो चीज नहीं मिलती है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज मैं सोच रहा था कि हम दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, हमेशा समझा देते हैं, लेकिन अपने आप को कई बार हम नहीं समझा सकते। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन वेरियस थिंग्स टू योरसेल्फ? मतलब ऑफ कोर्स हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, but it is all about how do we start same thing on ourselves so that we can lead by example. बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहले तो पेशेंस की बात करते हैं। हाँ जी। तो पेशेंस जो है बच्चों में इसलिए नहीं रही है क्योंकि आजकल इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट होती है। फटाफट कोई हैपनिंग होती है कंट्री में तो 2 मिनट में वो पूरी जगह उसका खबर पहुंच जाती है। तो हम लोगों में वो पेशेंस रही नहीं। पहले हम चिट्ठी का इंतजार करते थे, 10 दिन बाद हमें खबर आती थी, तब हमें पता लगता था कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन आजकल तो 1 मिनट में आ जाती है। तो वो उनके हैबिट में इम्बाइब हो गई है कि जल्दी होना चाहिए, जो भी हो जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। और दूसरा मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल बच्चे कम हैं, जैसे हम 6 बहन भाई थे, तो वी लर्न शेयरिंग वेरी फास्ट। लेकिन आजकल के बच्चे, क्योंकि एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं और फटाफट हम उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं और बड़ा उनको पैम्पर भी करते हैं। तो पेशेंस के लिए हमें चाहिए कि बच्चों को शेयरिंग सिखाएं। अगर बच्चा अकेला भी है तो उसको दूसरे बच्चों, नेबरहुड के बच्चे हैं, कजन्स के साथ मिलवाएं और उनको शेयरिंग की आदत डालें और उनको बहुत जल्दी हर चीज प्रोवाइड नहीं करें। कुछ तो बच्चे को, जब तक आप बच्चे को आप हर चीज जल्दी प्रोवाइड करोगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ऐसे ही थ्रो टेंट्रम्स कि मेरे को तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को ज्यादा पैम्पर मत करिए, उनको उनका राइटफुल चीजें ही दीजिए और जो ठीक नहीं है उनको मत दीजिए। और दूसरा सवाल आपने पूछा था कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें भगवान की तरफ, है ना? हाँ, मोटिवेट या फिर अपने आप को समझाएं कैसे। जैसे कोई भी इशू होता है ना किसी और की लाइफ में, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार, चीजें हैं, हम एकदम से बहुत सारी चीजें बताने लग जाते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को नहीं समझा पाते। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। दूसरे को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें हमें जो वो स्ट्रेंथ जो है ना, वो भगवान से मांगनी होगी कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं हर प्रॉब्लम को विजडम से सोच सकूं और अपने आप को समझा सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि जब भी मैं कोई गलत काम करने लगती हूँ तो आत्मा से एक बार वो आवाज जरूर आती है कि ये सही नहीं है, मत करो। लेकिन कई बार मैं वो इग्नोर करके कर देती हूँ। आप भी करते होंगे। तो अपने आप को समझाना है कि आपको आपको जल्दी रिएक्ट नहीं करना, किसी चीज पे भी जल्दी नहीं रिएक्ट करना और सोच समझकर विचार कर ही आपको काम करना है। और जैसे आपकी ये अवेयरनेस ही बहुत है कि आपको ये पता तो है कि मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा, तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसमें आपको स्पिरिचुअल बुक्स बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि एवरी डे जब मैं एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ती हूँ तो उस दिन मेरे को 2-3 टिप्स वो मिलते ही हैं कि आज की लर्निंग ये है, आज की लर्निंग ये है। तो करते करते धीरे धीरे धीरे, पहले मैं भी बहुत ओवर रिएक्ट करती थी, रादर आई वाज वेरी हाइपर पर्सन। हर चीज पे रिएक्ट करना, घर में फ्रिज खराब हो गया तो शोर मचा देना, क्या हो गया, कैसे घर चलेगा, तूफान ले आना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब समझ आ गई है कि जिंदगी में फ्रिज तो खराब होगा ही, फ्रिज नहीं होगा तो टीवी हो जाएगा, टीवी नहीं होगा तो कार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो मुसीबत आनी ही है, तो कूलली आप काम करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन ये सब ग्रेस ऑफ गॉड से ही होगा। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं ना, यू कैन इमीडिएटली प्रे टू द गॉड कि ये, जैसे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं साईं बाबा को पुकारती हूँ कि साईं बाबा प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे ये काम खराब हो गया, अब आप ही निकालो निकालो। एंड आई कीप ऑन प्रेइंग टिल ही डज इट, एंड 100% ही डज इट। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा काम ना किया हो।
तो वो फिर अब मेरे को इतना फेथ है उन पे कि मैं वो मेरी ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, व्हाई शुड आई वरी, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और ज्यादा मैं पास्ट में और प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं रहती, प्रेजेंट में रहती हूँ, मोमेंट में रहती हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको भी मोमेंट में रहना है और अपने आप को समझाना है कि मेरा मन मुझे भटका रहा है, लेकिन मुझे नहीं भटकना। मुझे विजडम है, मेरे पास सोल है, मैं सोच समझ के काम करूंगा। अगर आप उसी टाइम रात ही डिसीजन नहीं लेना, रेस्ट कर लीजिए, सुबह उठिए, प्रे टू गॉड एंड देन ही विल शो यू द लाइट। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आई थिंक यस, इतना सुंदर आंसर और कहीं हमें नहीं मिल सकता था। सो ये हमारी म्यूजिक वेरांडा से सारी विशेस आंसर हो रही हैं, जो हमारे जितने भी कंफ्यूजन्स थे लाइफ के। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू म्यूजिक वेरांडा। और लेट मी टेल यू गौरव जी, डॉक्टर रेखा, शी वॉचेस आवर प्रोग्राम्स एंड शी हैज अप्रिशिएटेड आवर प्रोग्राम्स। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर म्यूजिक वेरांडा कि हमारे प्रोग्राम्स सबको We all are पसंद। really so blessed. Thank you so much. So fortunate, to have you here. Actually, मन में बहुत सारे सवाल और भी हैं, और लेकिन हम आपको और जल्दी दोबारा भी बुलाने वाले हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और कई बार बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन आपने जो आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, आपने इतनी सारी किताबें जो पढ़ी हैं, उसका थोड़ा सा सार भी जो हमें मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। So really thank you for this. थैंक यू सो मच। So thank you so much। बहुत सारी चीजें अभी हैं और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन आई डोंट नो, बहुत टाइम काफी हो गया है। और व्हाट डू यू से गौरव जी, डू वी रैप अप? रिलेशनशिप के ऊपर भी कुछ बताइए, जैसे हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर डॉटर। तो हर किसी के लाइफ में जो मेरे को समझ में आता है, 4 एरियाज होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप ना। तो उसमें भी जैसे चाहे वो पेशेंस है, विचार नहीं मिलते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। कई बार जनरेशन गैप भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन होता है ना कि सोशल मीडिया के आने के बाद हम सारे लोग अकेले हो गए हैं, उसी में लगे रहते हैं, और एक वो भी होती है, अटेंशन सीकिंग भी होती है बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में आप क्या कहना उसके चाहेंगे? बारे में तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली आपको अटैचमेंट रखनी है विद डिटैचमेंट। यू हैव टू बी डिटैच्ड टू बी अटैच्ड। दैट मीन्स कि आप ओवर अटैच्ड भी नहीं हो सकते लोगों से। और रिलेशनशिप को अगर चलाना है तो 2 चीजें ध्यान में रखिए। एक तो हर रिलेशनशिप को स्पेस दीजिए, जरूरत से ज्यादा किसी से मिलिए जुलिए नहीं, अपने बच्चों से भी नहीं, अपने पति से भी नहीं, अपनी पत्नी से भी नहीं, उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। और आपको स्पेस देनी होगी उनको, तभी आपके रिश्ते निभ पाएंगे। और दूसरा ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये रिश्ता मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इसको चलाऊंगा या मैं इसको चलाऊंगी। ये दूसरा आदमी कितनी भी पागलों वाली बातें करे, मैं इसको एडजस्ट करूंगी, क्योंकि आपको जरूरत है उस रिश्ते की। जैसे आपका बच्चा है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, पर आपको बच्चे को छोड़ नहीं सकते, तो बच्चा आपकी जरूरत है। तो आप ये सोचिए कि ज्यादा जिम्मेवारी मेरी है। हर रिश्ते में आप अपनी जिम्मेवारी समझिए कि मेरी जिम्मेवारी ये ज्यादा है, इसको संभालना। दूसरा आदमी करे ना करे उसकी मर्जी है। ये बातें अगर आप अपनी जिम्मेवारी ले लोगे और उनको स्पेस दे दोगे, तो आपका रिश्ता चल ही पड़ेगा, गंदे से गंदा रिश्ता भी चल पड़ेगा। Okay, that is really interesting, nice, thank you. सो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था और आपने पूछ दिया। मुझे लग रहा है ये पूरा प्रोग्राम इसीलिए क्यूरेट हुआ है कि मेरा वो क्वेश्चन मतलब आप जो बोल रही थी कि व्हेन यू कनेक्ट टू, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग टू द ऑलमाइटी, क्योंकि धीरे धीरे एक और सवाल का भी बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। कई बार ना हमारे दिमाग में कुछ होता है और दिल में कुछ और होता है, 2 राहें होती है ना, कि दिमाग कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन दिल कहता है, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। उसका बड़ा इन्होंने खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। कहीं ना कहीं वो हमारी कॉन्शियस हमें रोकती है, हाँ यार ये चीज नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आ रहे हैं। वेरी नाइस। तो मुझे ऐसा लगता है जो डॉक्टर रेखा और डॉक्टर अपर्णा, चलते चलते आपका कोई लास्ट मैसेज, आप अभी आज के शो के लिए लास्ट मैसेज
कोई देना चाहे तो आप विल बी वेरी थैंकफुल। और फिर आई विल रिक्वेस्ट शांतना, इसने बहुत सुंदर एक भजन प्रिपेयर किया है, सो विल रैप अप विद शांतना's भजन। सो एनी लास्ट मैसेज फॉर द इवनिंग जो कि हम लोग सहेजें और फॉलो करें। सो जिसके सुनकर हमारी जिंदगी बदल जाए, थोड़ा उद्धार हो जाए। यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो फ्यूचर इंडिया है वो हमारे आजकल के यूथ हैं। तो अगर वो ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ये मन में गांठ बांध लें कि ये पर्ल्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम ही है और इनको जरूर अपने जीवन में ढालें वो। क्योंकि ये जो आजकल की जो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी में वो ये कर लूं वो कर लूं, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स, उसमें दे आर वेरी रेस्टलेस एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द एम ऑफ देयर लाइफ। तो इन तरह की इतनी ठहराव वाली बातें सुन के और बड़े सिंपल ढंग से बताई गई हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। और वो जो घबराते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम से, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म दैट वी पुट ऑन के थोड़ी देर के लिए हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। इट्स ए वे ऑफ लाइफ इन उनको इसको अपनी जिंदगी में ढालना है और उससे घबराना नहीं है उनको। तो इस तरह से वो ये सब बातें आजकल हमारी जो आज के प्रोग्राम में हुई, अगर उसको अपने जीवन में लाएंगे तो श्योरली एंड श्योरली सर्टेनली आवर इंडिया विल रियली बी द नंबर 1 इन द ग्लोबली स्पिरिचुअली। तो यही है कि कितनी सिंसेरिटी और डिवोशन से वो इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो इट विल बी ए ग्रेट सर्विस टू आवर कंट्री। यस डॉक्टर रेखा, आपका कोई मैसेज आज? हाँ, एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको मैं ये सही बता रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ है ना, ये ग्रेस ऑफ गॉड से हुआ है। गॉड हैज कॉल्ड ऑल ऑफ यू, he keeps on giving his calls to you, and this is another awakening call for all the people who are watching this, that they must get connected to God if they have not got already. And I'm very grateful to God that I could communicate to so many people. And I always feel that why people are suffering, they need not suffer. They can be very happy when God is by their side. They are a different person altogether. You can be totally transformed from inside. You can be always 24 hours happy person, and it's not at all difficult. Have some kind of sadhana in your life, and be grateful to God for whatever he has given you. He really loves you, and we have to also love him, and that is the only solution of life. Thank you. वेरी ब्यूटीफुल। और मेरी डॉटर भी यहाँ इधर उधर घूम रही है, उसके भी कान में शायद बातें सब जा रही हैं। So I'm hopeful that this message also reaches to her and to many more. So thank you everyone for being part of the show. A special thanks to Dr. Aparna, Dr. Rekha, Jaya ji, Darshana ji, thank you, and Uttam ji, और जो लोग जिन्होंने participate किया, and all our viewers. Thank you everyone, and over to Shantana. And GJ, any last message for the evening you have? Thank you so much. I don't have really words. I'm speechless, and I'm gonna see this recording again and again. बहुत सारी बातें हमारे लिए हैं. Hearty gratitude. समझ में आएंगी। हाँ, yes, हाँ, yes, yes. सही बात है। So अब 3 चीजें हो गई हैं, बुक्स पढ़ें या YouTube देखें या म्यूजिक वरांडा का या ये शो देखें, तो you connect to God. So over to Shantana. Thank you, Anila. Good evening, ma'am. It is a blessed day. Yes, very well said, Rekha ji, that it's we are all grateful to God, and today he has blessed us to be a part of this show. I've paired this bhajan. It's really very close to my heart. Hope you all love it. Hare Krishna. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्
राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। Thank you so much. Wonderful. Wonderful. Very nice. बहुत Okay. खूब. तो भगवान हमेशा ही हमसे कनेक्टेड है, we just have to call him.